विरुद्ध है, जो हमारे जीवनों को निचले स्तर Those पर लाना things which चाहता are है। unseen would like to bring us down to lower levels of life in the Lord. वो चीजें जो अनदेखी हैं, परंतु वो प्रभु में हमारे उस आत्मिक जीवन के स्तर को नीचे ला And Paul सकती है। says, have none of that. और पौलुस कहता है कि उनमें से कोई चीज ना ले। Paul says, maintain your high standard to which you have been called, Timothy. और पौलुस कहता है कि हे तिमोथी, जिस ऊंचे स्तर के लिए तू बुलाया गया है, तू उसे बनाए रख। You know, when we were there in that place, one leader, he said, we have not come here to give special numbers, he said. और जब हम उस स्थान में थे तो एक अगुवा ने कहा कि हम विशेष नंबर देने के लिए यहाँ पर Our नहीं choir आए। is not here to give special numbers. और हमारी क्वायर इसलिए यहाँ पर नहीं है कि विशेष गीतों को गाया जाएगा। No, this is numbers. गिन- Okay, maybe. There's no translation for that in Hindi perhaps. But he said, we have not come here even to entertain. और किसी मनोरंजन के लिए हम यहाँ पर नहीं आए We हैं। have come here to worship the Lord. हम यहाँ प्रभु की आराधना के लिए आए But हैं। from the beginning till the end, what they did was nothing but entertainment. परंतु शुरू से लेकर अंत तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया सिवाय मनोरंजन So के। we can have words which are right and nice. और हम वो शब्द रख सकते हैं जो बहुत ही This भले is the लगते हैं। greatest deception that is going on today. और ये एक बहुत बड़ा धोखा है जो आज हो रहा है। And you know how that man would have felt when I was sharing the word. और आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति ने कैसा महसूस किया होगा जब मैं वचन बांट You रहा know, था। God was coming against all the entertainment that is in the church today. और परमेश्वर उन सारे कलीसिया के अंदर जो मनोरंजन है उसके विरुद्ध बात कर रहा How है। the world has invaded the church. How the world has invaded the church. और किस प्रकार से संसार कलीसिया में प्रवेश कर चुका है। So saints, we need to stand up against these forces which are working to lower the spiritual standards of his people. और इसलिए परमेश्वर के पवित्र लोगों, हमें इन शक्तियों के विरुद्ध खड़ा होना है जो आत्मिक स्तरों को नीचे गिराने के लिए है। As I said last week, जैसे पिछले सप्ताह मैंने our कहा, fight is against lowering spiritual levels. और हमारा युद्ध जो है उन शक्तियों के विरुद्ध है जो आत्मिक स्तरों को नीचे गिराती है। The other thing that I want to share with us this morning is, और आज जो मैं दूसरी बात बताना our चाहता हूं, fight is against loss of spiritual measure in our lives. और हमारे जीवनों के अंदर जो आत्मिक स्तर है उसके खो जाने से, Yes. उसकी हानि के लिए भी Yes. हमने युद्ध लड़ना है। Loss of spiritual measure. हमारा आत्मिक स्तर जो है उसके लिए हमने युद्ध लड़ना है। As Paul says here, we need to watch therefore over our lives और जैसे पौलुस ने कहा, इसलिए हमें अपने जीवन के ऊपर बहुत ही नजर रखनी है against forfeiting of that fullness. और उस परिपूर्णता के विरुद्ध जो है उसके, That fullness that has been made known to us. और वो परिपूर्णता जो हमें मालूम हो गई Listen है, carefully. The Lord has made known the fullness to us, और परिपूर्णता को प्रभु ने हमें दिखाया है कि though we have not come into the fullness yet. यद्यपि हम अभी उस परिपूर्णता में पहुंचे नहीं है, And because He has made known the fullness, परंतु उसका ज्ञान प्रभु ने हमें दे दिया we है। are to progress on into that fullness in our अब lives. हमने उन्नति करके अपने जीवन में उस परिपूर्णता में पहुंचना, Yes, which has been revealed in His mercy to us. जो प्रभु ने अपनी दया में हम पर प्रकट की To है। fullness, you and I have been called as individuals and corporately as a body of believers. और उसी परिपूर्णता के लिए आप और मैं संगठित रूप से और व्यक्तिगत रूप से बुलाए गए हैं। And the enemy is certainly going to work against this measure. और वो शत्रु विश्वसनीय रूप से इसके विरुद्ध खड़ा हो। So we need to watch, we need to guard therefore our lives. और इसलिए अपने जीवनों पर हमने कड़ी नजर रखनी है और चौकसी करनी है। Saints of God, we need to be careful that we do not forfeit this fullness the Lord has made known to us. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमने पूरी सावधानी से ये देखना है कि ये परिपूर्णता के लिए जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है, इसको हम व्यर्थ We गंवा are दें। not to forfeit it, we are not to sacrifice it for anything. और इसका बलिदान किसी भी चीज के लिए हमने देना नहीं है, इसको पराजय नहीं करना। Let there be no let up in our lives. और हमारे जीवनों में कोई छोड़ने का कार्य ना It हो। is here we need to fight a good fight of faith.
और यहीं पर हमने एक विश्वास का अच्छा युद्ध लड़ना that we है, come into the full measure that God has revealed unto us. ताकि हम उस परिपूर्णता में पहुंच जाए जो परमेश्वर ने हम पर प्रकट की है। The enemy brings many challenges into our lives. और वो शत्रु हमारे जीवन में बहुत सी चुनौतियां लाता है, The enemy brings many doubts into our minds. बहुत से प्रकार के संदेह और शक हमारे जीवनों में Is it लाता है। possible for God to do this in our lives? और ये परमेश्वर के लिए असंभव है कि वो हमारे जीवनों में ऐसा करे। This is how he would forfeit that measure in our lives. और इसी प्रकार से वो चीज जो परमेश्वर ने रखी है परिपूर्णता, उससे हमें वो When we वंचित look करना at the चाहता है। children of Israel as an example again, और फिर जब हम इस्राएली बच्चों का उदाहरण देखते हैं, you know, this is how the Lord forfeited that fullness in their lives. और किस प्रकार से उनके जीवन में उस परिपूर्णता को प्राप्त नहीं When कर they सके। started off from Egypt, और जब वो मिस्र से निकले the things were very clear before them. और उनके सामने चीजें बिल्कुल स्पष्ट थी, They were a joyful company of people. और वो एक बहुत खुश और आनंदित समूह था लोगों They का। said in Exodus chapter 19, they all said, all that the Lord had spoken, we will obey. और निर्गमन की पुस्तक 19वें अध्याय में उन्होंने कहा जो कुछ परमेश्वर ने आज्ञाएं दी है हम सब उसकी आज्ञा Oh, well, they were करेंगे। a people who wanted to walk so closely with the Lord. और वो ऐसे लोग थे जो इतनी निकटता से परमेश्वर के साथ चलना But चाहते they lost that spiritual measure in their lives. परंतु उस आत्मिक स्तर को उन्होंने अपने जीवनों में खो दिया, You know, by doubts coming into their lives. क्योंकि उनके जीवनों के अंदर संदेह आने The लगे enemy brought in challenges. और शत्रु ने उनके जीवन में चुनौतियां And भेजी। how did these challenges come? और ये चुनौतियां किस प्रकार से आई? Challenges came in their daily walk, और उनके प्रतिदिन के जीवन के चलन में in the वो चुनौतियां आई। day-to-day situations. और दिन ब दिन की जो परिस्थितियां उनके It सामने is आती, there the things began to come into their lives. और वहीं पर वो संदेह जो थे उनके जीवनों में आने लगे। Can God take us on? क्या परमेश्वर हमें आगे ले जा सकता Can है? God do this? क्या परमेश्वर ये कर सकता है? And slowly that spiritual measure began to be reduced in their lives. और धीरे धीरे करके वो आत्मिक स्तर उनके जीवन में नीचे होने लगा। That fullness the Lord has revealed to us, और वो परिपूर्णता जो प्रभु ने हम पर प्रकट की है, unto which you and I have been called. जिसके लिए आप और मैं बुलाए गए हैं। Saints, we have to watch that in our lives. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें अपने जीवनों में उस पर नजर And रखनी make है sure that there is no loss of that spiritual measure in our lives. और इस बात का पूरा विश्वास कर लेना है कि हमारे आत्मिक स्तर में कोई भी हानि ना होने पाए। No, the peril is ever present in our lives. और वो बिगाड़ जो है वो पहले ही हमारे जीवनों में है, Today as never before in our lives. और आज वैसा है जैसे पहले कभी और था नहीं। You know, the peril is ever present. और वो बिगाड़ जो है वो मौजूद है So हमारे we need to जीवनों में। be a people who are watchful. परंतु हमें चाहिए कि हम ऐसे लोग हों जो बहुत ही सतर्क We हों make no compromise in this matter. और इस विषय में कोई भी समझौता ना करें। You know, it's not a matter how much I progress, but I can only progress when I keep that measure. What He has revealed to me, I need to watch that first. और मैंने कितनी उन्नति की है, बात ये नहीं है, परंतु ये देखना है कि जो प्रभु ने दिया है उसमें मैं कितना सतर्क हूँ। Look at that man called Esau. और ईसाऊ को देखें, He said, what good is that inheritance to me? और उसने कहा कि ये मिरास मेरे किस काम की। When he was hungry, he forgot what measure God has called him, what measure he had in his life. और जब वो भूखा था तो वो भूल गया कि परमेश्वर ने किस चीज के लिए उसको बुलाया है He said, उसके what जीवन good में। is that inheritance to me? I go hungry today. और उसने कहा कि वो मिरास मेरे लिए किस काम की, जबकि आज मैं How many भूखा हूं। times the enemy has spoken to your hearts and minds? और कितनी बार उस शत्रु ने आपके हृदय और Where मन में all बात this की है। fullness and maturity and, you know, Christ likeness, Mara Goli. और ये सारी बातें जो कि मसीह के स्वरूप sorry. बनना, ये परिपूर्णता में I've जाना, become too शुद्धता local. में जानना, इसको Too छोड़ दो। localized.
Just leave it all. You're hungry, man. और तुम तो इस वक्त भूखे हो, You're छोड़ो इन facing a चीजों को। situation. और तुम्हारे सामने तो एक परिस्थिति Your high है, calling is not going to help you here. और तुम्हारा ऊंची बुलाहट जो है तुम्हारी यहाँ सहायता High नहीं calling करेगी। catch up on Sunday morning. और वो ऊंची बुलाहट को इतवार की सुबह पकड़ You लेना can make it up. और इसको बना सकते हो बाद But में। let this situation, you take your own step परंतु here. जो परिस्थिति इस वर्तमान समय में तुम्हारे सामने है उसको देखो। And saints of God, many have lost that measure. और बहुतों ने उस स्तर को खो दिया है परमेश्वर के You know, प्रिय we लोगों। need to be very, very careful here in और our इसलिए lives. हमें यहाँ पर अपने जीवन में बहुत ही सावधान It's होना है। not a matter of how much you have progressed, first of all, और बात ये नहीं है कि आपने कितनी उन्नति की है, but first of all, the matter is, are you holding that measure God has called you into and revealed to you with all watchfulness? That's the first thing. परंतु प्रथम बात यह है कि Yes. जिस परिपूर्णता के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि आप Yes. उसमें जाएं, क्या उसे अब भी आप थामे हुए हैं या नहीं? Are you watchful? क्या आप सावधान हैं? A loss there is definitely going to have an impact upon your progression and walk. और यदि वहां पर कोई हानि हुई तो Yes. उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव आपकी उन्नति और चलन पर भी पड़ेगा। Amen? We have to watch over that. हमें बहुत ही सावधानी से उसे देखना When you neglect that, then it is already affecting your progression. और जब हम उसकी लापरवाही करेंगे तो उसका हमारी उन्नति पर This is what प्रभाव has शुरू हो happened जाएगा। with many, many believers. और ये बहुत से विश्वासियों के साथ हुआ Many people who have been here with us. और बहुत से लोग हमारे साथ मौजूद थे। Who knows? Such people are still with us. और कौन जानता है कि वो लोग Are अब still भी among हमारे us. साथ या हमारे बीच में हैं। Saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, You know, if there is a let up in that measure, और यदि उस स्तर में पहुंचकर अगर छोड़ देने का you know, कारण that हो which जाए, God has revealed, और वो जो परमेश्वर ने हम पर that प्रकट which किया God है, has called us into, और जिसके लिए परमेश्वर ने we हमें must बुलाया keep है, a watch over those things. Be Uh-huh. watchful. और हमें चाहिए कि बहुत ही सतर्क और होशियारी हम बरतें Yes, that there is no loss in that spiritual measure. ताकि उस आत्मिक स्तर में किसी प्रकार की हानि ना हो। You know, we must make sure that nothing forfeits as of that measure. और हमें इस बात का पूरा विश्वास कर लेना चाहिए कि कोई भी उस स्तर में पहुंचने के लिए हमें रोके Many, नहीं। many people have lost this because of बहुत से लोगों ने इस कारण से उसको खो दिया है, that. Lost their battle here. और वो युद्ध में हार As गए we हैं। see in the life of the children of Israel. और जैसे इस्राएली बच्चों के जीवन में हम देखते You हैं, know, slowly, और धीरे धीरे slowly, this unbelief, ये अविश्वास sick faith, और वो बीमार विश्वास you know, came into their lives. उनके जीवन में प्रवेश कर And गया, that measure was removed from them. और वो स्तर जो ऊंचा था उनके अंदर से हट गया, You know, slowly it happened. और धीरे धीरे ऐसा हुआ, That measure was removed from them. और वो स्तर जो था उनमें से निकल And गया। you know, finally what happened? और अंत में क्या हुआ आप जानते Even हैं? though the spies went in, और जबकि वो गुप्तचर उस देश में गए, God made them to go and come back by His might. और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से उन्हें वहां जाने दिया और वापस भी लौटाए, They were fully, you know, smitten by unbelief. और अब विश्वास से पूरी तरह से वो मार खा So, चुके my थे। dear brothers and sisters, और मेरे प्रिय भाई our और fight बहनों, is here to maintain this spiritual measure. और हमारा युद्ध यहाँ पर है कि हम अपने उस आत्मिक स्तर के लिए लड़े और There, उसे बनाए let there रखें, be no let up. और कोई भी छोड़ने का कार्य ना You हो, know, let there be nothing that would be allowed to enter in that would forfeit us and cause a loss to happen in this measure. और कोई भी ऐसी वस्तु को हम अपने अंदर प्रवेश ना होने दें जो हमें इससे पराजय करे और हम वंचित हो जाएं। Having said that, let's move on again. और ये कहने के पश्चात अब हम आगे बढ़े। As you read through the writings of Paul, जब हम पौलुस के लेखों को पढ़ते we हैं, see that Paul's fight against was against, you know, formality. और हम देखते हैं कि पौलुस का युद्ध जो था वो फॉर्मेलिटी के लिए था, You know, formality, औपचारिकता के लिए था, form of things in life. और चीजों को जो अपने जीवन में एक रूप दे रखा है। Form or ritual. और एक चीज का रूप या रीति रिवाज, Which would supplant the spiritual life. और वो रीति रिवाज जो के आत्मिक जीवन को
हानि पहुंचाती है fight against every formality, और प्रति एक जो औपचारिकता है, कोई रूप है, उसके every विरुद्ध लड़ना, ritual, हर एक परंपरा या रीति रिवाज every officialdom, और कोई भी औपचारिक की चीज जो हमने बना ली है, which would supplant the true spiritual life. और जो के उस सच्ची आत्मिक जीवन को हानि पहुंचाएगी. You know, when you read the book of 1 Timothy, और पहला तिमोथी को जब हम पढ़ते हैं, we read here so many things he writes about, you know, the elders and the deacons and bishops and so on. और यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो अगुवाओं के विषय में, डीकन्स के विषय में बहुत कुछ लिखता है. You know, we are not going into all the verses. We are not going to word by word study here, verse by word study. But as you read through these chapters, परंतु जब इन Chapter अध्यायों को हम 3. पढ़ते हैं, तीसरा अध्याय, you know, we read about the qualifications for the elders and bishops or deacons, etc. और यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर्स, बिशप्स और डीकन्स के विषय में जो योग्यता है उसने Paul बताई had to है. say much about elders, और पौलुस को अगुवाओं के विषय में बहुत अधिक कहना पड़ा what they ought to be, कि उन्हें क्या होना चाहिए, the kind of people they ought to be, किस प्रकार के लोग उन्हें होना चाहिए, their abilities, उनकी योग्यताएं their capacities, और उनकी क्षमता their standard of life, और उनके जीवन का स्तर their gifts. और उनके वरदान. Why Paul had to write this to Timothy at this point of time? और पौलुस को ये सारी बातें तिमोथी को ऐसे समय में क्यों लिखनी पड़ी? Because the spiritual, true spiritual values had gone down. क्योंकि वो सच्चे आत्मिक वस्तुएं जो थी वो नीचे गिर चुकी थी. It was because of this decline and the poor spiritual state that the churches were coming into. और इस उतार के कारण से जो कलीसिया का उतार हो रहा था, उनकी आत्मिक स्तर का उतार हो रहा था. He talks about the deacons. और वो डीकन्स के विषय में As बतलाता our brother है. mentioned this morning, Brother Freddie. और भाई फ्रेडी ने जिस प्रकार से बतलाया, Deacons who were servants of the church और in the डीकन्स general matters. और जो कि आम रीति से कलीसिया के दास थे. He says quite a lot about them in this chapter. और इस अध्याय में पौलुस उनके विषय में भी बहुत कुछ कहता है. He talks about their standard of life, और उनके जीवन के स्तर के विषय में the kind of बताता men है. they should be, और किस प्रकार के लोग उन्हें होना चाहिए, matters about their life, और उनके जीवन के विषय में, and also the life of the saints, और परमेश्वर के लोगों के जीवन के विषय में भी, what will really make up their life together as God's people, और परमेश्वर के लोग एकत्र होकर उनके रूप में Their- उनके जीवन को क्या होगा, their corporate life, उनका संगठित जीवन, how they ought to behave in the church of God. और किस प्रकार से परमेश्वर के भवन के अंदर उनका व्यवहार होना चाहिए. Yeah. Paul says how they ought to behave in the church of God, और वो पौलुस कहता है कि परमेश्वर की कलीसिया में किस प्रकार से which उनका is the व्यवहार church होना of the चाहिए. living God, the pillar and the ground of the truth. और जो कि जीवित परमेश्वर का की कलीसिया है और वो स्तंभ है उस सच्चाई का, उस धरती का. One thing is very clear as you read through, brothers and और sisters. जब हम इनको पढ़ते हैं तो एक चीज बड़ी स्पष्ट है. He was calling back his people from something they had gone into. वो अपने लोगों को वापिस बुला रहा था Yes. किसी चीज से जिसमें वो जा चुके थे. He was calling them back, वो उनको वापिस बुला रहा था, calling them back into those things from which they had moved out. उन चीजों में से उनको वापिस बुला रहा था जिसमें से वो निकल कर पहले आए And थे. what was that? और वो क्या थी? They had gone into, from the true spiritualities to formalities, rituals, and officialdom. एक सच्ची आत्मिकता से वो परंपराओं में, रीति रिवाजों में और औपचारिकता में चले गए थे. In other words, let me put it across like this, elders becoming officials. और इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि अगुवा जो थे वो औपचारिक बन चुके थे, Deacons becoming officials. और डीकन्स जो थे वो औपचारिक हो चुके थे, Position and prestige more than their function in the church. और वो अपने पद को और अपने आदर को अधिक मानते थे बजाय इसके कि उनका And कार्य Paul the कलीसिया में- apostle is burdened here and he is desiring to arrest that course in the church.
और पौलुस यहाँ पर उस पर एक बड़ा बोझ है कि वो उस चीज को वापस कलीसिया में लौटा It लाए, is robbing the life of the saints and the church. और ये चीजें जो है वो परमेश्वर के लोगों और कलीसिया को लूट रही हैं। You know, so Paul says we need to fight against these things. और इसीलिए पौलुस ने कहा कि इन चीजों के विरुद्ध हमें लड़ना है। If you read through, और जब हम पढ़ें इसको, you know, these letters, इन पत्रों को, one thing we see concerning the elders, और अगुवाओं के विषय में एक चीज हम देखते the हैं, elder is a spiritual man. अगुवा एक आत्मिक जन है, Otherwise, he is nothing as far as God is concerned. और नहीं तो जहां तक परमेश्वर का संबंध है वो कुछ भी नहीं है, All his other credentials are of no value before the Lord. और उसकी जितनी भी बाकी चीजें हैं वो परमेश्वर के समय बिल्कुल व्यर्थ हैं। An elder is a spiritual man. एक एल्डर या अगवा जो है वो आत्मिक जन है, Otherwise, he is a nobody, he is nothing as far as God is concerned. और नहीं तो वो जहां तक परमेश्वर का संबंध है कोई भी नहीं है, व्यर्थ है, कोई उसकी मूल्य नहीं। And Paul says, in other words, और पौलुस कहता है दूसरे शब्दों Timothy, में these things must be guarded in the midst of you. कि हे तिमोथी, तुम्हारे बीच में इन चीजों की बड़ी चौकसी करनी चाहिए, Safeguard that spirituality, therefore. और इसलिए उस आत्मिकता की रखवाली कर, These things must be safeguarded और इन चीजों की spiritually. आत्मिक रूप से इस आत्मिक चीजों की रखवाली करनी By है, spirituality, spiritual things must be safeguarded. और आत्मिकता के ही द्वारा आत्मिक वस्तुओं की रखवाली करनी चाहिए। Remember that. इसको स्मरण करो, So only by spirituality, spiritual things can be guarded. आत्मिकता से ही आत्मिक वस्तुओं की रखवाली की जा We सकती cannot है, guard them by our natural abilities. और हम अपने प्राकृतिक योग्यताओं से उनकी रखवाली नहीं By कर सकते। spirituality alone, spiritual things can be guarded, saints of God. आत्मिकता के द्वारा ही आत्मिक वस्तुओं की रखवाली की जा सकती है, And Paul says, guard them therefore. और इसलिए पौलुस कहता है कि उनकी By रखवाली कर, spirituality. उस आत्मिकता की, And do not allow things to drift into something else. और चीजों को किसी और वस्तु में जाने ना दे। It is possible, ऐसा संभव है, and many have. और बहुतों को एहसास ऐसा Therefore, हुआ है। Timothy, guard these things. इसलिए तिमोथी Preserve them. इन चीजों की रखवाली कर, Guard रक्षा कर, spiritual things by spirituality. और आत्मिक वस्तुओं की चौकसी आत्मिकता से कर। As we have heard several times before, और जैसे हमने पहले कहा